सर ऑडियंस के बारे में audience came from the Ramethi Nashik. Ramethi is the Regional Agriculture Management Extension Training Institute, isn't it? Yes. So every region, Maharashtra government has established Ramethi in every region, and Ramethi organized training program for the agriculture department officers. They have two training centers. One at lower regional level, and another is at state level, that is Vanamati and Nagpur. So these people are agriculture supervisors, officers at field level, and they are from Jalgaon district only. Yes, because this training program is especially for banana. This training program is especially for banana. Duration is 3 days. 3 days they have to understand what is banana. Only not eating banana, they have to understand how to cultivate. So that's what is that agriculture technology is one of the component of the planting material of banana in cultivation. In entire cultivation, planting material is one of the component. So that is the component tissue culture plant led. So I will request Dr. Anushka Singh, please. Thank you. Thank you, sir. I want to mention that there is a big program worldwide which is going on, is about clean plant material, clean planting material, that is known as Clean Plant Program. So big, all countries are participating. We are also participating in that. Tissue culture is one of the technologies which makes clean planting material available to the growers. And like Jadeh sir had already mentioned that in the beginning we conducted field trials about Zelig, Williams and Grand Nain along with local banana varieties, and Grand Nain was found to be most suitable, and also it was good for table purpose as well as processing. Only a few varieties may be standing to this level, because some of them may be only good for table purpose and some of them may be only good for processing, but Grand Nain has both the qualities, and it has very good productivity. Like Jadeh sir will, wherever necessary, he will explain, because I don't have much field experience. Like he has mentioned that we have to start, the topic is of course research and development, but I will just start from the tissue culture of banana, how it is conducted and what are the advantages of tissue culture in banana particularly. Most of you may have been exposed to term plant breeding, because you evolve new varieties through breeding. In tissue culture we don't evolve any new variety, but we select, like in plant breeding, mother plants are selected for any particular trait, 2 parents are selected, and then the progeny actually combines the traits of both the parents. In tissue culture also selection becomes very important, because we want to produce good planting material, good quality planting material. Good quality planting material will be, it should produce good volume of production, should be comparable to any other high producing variety available in the market, or more than that. So selection becomes very important, because though you can go in the banana field and you will find, yes, all the bunches look same, but still selection is important. There are many parameters on which tissue culture people will select the mother plant, and one of them is productivity. Then of course health is, figure, health, everything is considered, because if a plant is healthy, it will definitely give better bunch. In tissue culture, when we select morphologically initially, then they see that the plant is healthy and bearing good bunch, so that mother plant is selected, but it is not used for tissue culture unless it is found disease free.
विजुअली। Excuse me. Yes. For a minute. यस सर। Can you mix it? मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेहतर होगा। नहीं तो मैं हिंदी में बोलूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, सिर्फ क्या है साइंटिफिक टर्म्स होंगे इंग्लिश में, बाकी हिंदी में बोलूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम। मेरी तो भाषा हिंदी है। मला हे सांगा तुम्ही प्रामाणिकपणे सांगा, मला सर्वांना इंग्लिश समजतंय का? हिंदी सांग. मराठी मेरे लिए थोड़ा बीच बीच में शब्द यूज करूँगा। म्हणूनच विचारलं. हो नहीं, हिंदी में बोलूँगा सर, मैं बोल सकता हूँ। असलं पाहिजे, समजणार असलं पाहिजे. डिप्लोमा आलेला आहे. दादा म्हणून तर नाही. मुझे भी हिंदी में बोलना आसान होगा। तुमची काळजी आहे ना मला. उशिरा का होणार? तुम्हाला गाडी झाली. उशीर नाही ना सर मैं एक्चुअली आपको पहले पूछने वाला था। गरीब माणूस आहे, पकडा एक नंबर आहे. हे सत्य रे, सत्यच आहे. बिगड तेच होतं ना. करायला आता just सुरुवात झाली त्यांची. ठीक आहे. तुमची मला काळजी वाटली, काळजीपोटी त्यांना मी आता हिंदी शिकवतो. ठीक आहे. आणि अजून त्यांचं काही समजलं तुम्ही बाकी सांगा अजून. जी ठीक है, थैंक यू। तो थोड़ा आपको रोका इसलिए मुझे माफ कीजिए। नहीं, मैं तो पहले पूछने वाला था कि मैं हिंदी में बोलूं क्या, मुझे आप आसान, क्षमा कीजिए। मुझे भी आसान नहीं, क्षमा नहीं सर, क्षमा की क्या बात है। दोनों लोगों को जिसमें आसानी हो वैसा करना अच्छा Yes, रहेगा। yes, हाँ। मुझे भी आसानी है हिंदी बोलने में, मेरी मातृभाषा तो हिंदी है। मराठी में बीच बीच में शब्द मुझे आ सकते हैं, लेकिन मैं बहुत फ्लुएंटली नहीं बोल पाता हूँ, तो हिंदी अच्छी है मेरे लिए। जी जी आप हिंदी तो समझ सकते हैं, महाराष्ट्र में सभी लोग हिंदी समझते हैं। जी बिल्कुल। तो हमने शुरुआत की थी कि फील्ड ट्रायल, जैसे साहब ने बताया, विलियम्स, जेलिग और ग्रैंडनैन शुरू में ट्रायल हुए, और उसमें ग्रैंडनैन को अच्छा पाया गया परफॉर्मेंस की बेसिस पे। और ग्रैंडनैन में 2 खूबियां थी, क्योंकि वो प्रोसेसिंग के लिए भी अच्छी है और खाने के लिए टेबल वैरायटी की तरह भी ग्रैंडनैन बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट होती है। साउथ की वैरायटीज़ को अगर छोड़ दें तो ग्रैंडनैन अभी भी मैं कहूँगा कि भारत में नंबर 1 प्रोडक्टिविटी एंड यूज़ को लेकर के नंबर 1 वैरायटी ग्रैंडनैन ही है, जिसपे कि 90% से ज़्यादा कल्टीवेशन होता होगा। सर अभी जो लोकल वैरायटी जो है ना, जी। पूरा रिप्लेस हो गई है। हाँ जी, अभी जलगांव में आप ढूंढ के भी आपको बथराई नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। जी जी ये वास्तवता है। जी सही। और ये पूरा क्रेडिट जाता है जैन इरिगेशन को। जी जी, यस हाँ। यस। तो उस तरह से फिर ग्रैंडनैन का सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने बताया आपको कि ब्रीडिंग में जैसे पेरेंट्स का सिलेक्शन होता है, वैसे टिश्यू कल्चर में भी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसा मदर प्लांट, जैसा मातृ वृक्ष होगा वैसी ही प्रोजेनी होगी। तो हम सेलेक्ट करेंगे अच्छे बंच वाले पौधे को, देखने में हेल्दी है, पर उसको हम तब तक टिश्यू कल्चर में लेते नहीं है जब तक उसकी केमिकल टेस्टिंग नहीं करते, क्योंकि हमारा वादा है ग्रोवर्स को क्लीन प्लांटिंग मटेरियल देने का, हाई क्वालिटी क्लीन प्लांटिंग मटेरियल। तो हम उसकी केमिकल टेस्टिंग भी करते हैं। एक बार टेस्टिंग हुई और वो प्लांट केमिकली भी डिजीज़ फ्री मिला। खासतौर पर बताऊँ आपको, 4 तरह के वायरस बनाना में होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा कुछ वायरसेस का तो प्रोडक्टिविटी में बहुत बुरा असर होता है, इसलिए इनकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब टिश्यू क्लीन है फिर वो कल्चर में इनिशिएट होता है। अभी कल्चर में एक तो मीडियम होता है जो कि मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम खेत में मिट्टी गए तो मिट्टी में सभी चीज़ें ग्रो करते हैं हम, और मिट्टी में सारी पावर है, पर कभी कभी उसमें हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि हमको जब उसमें से पैदावार लेनी है उसके रेशियो में कुछ ना कुछ खाद, चाहे ऑर्गेनिक फॉर्म में चाहे इनऑर्गेनिक फॉर्म में, हम ऐड करते हैं। ऐसे ही टिश्यू कल्चर का मीडियम भी होता है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि कल्चर को ग्रो करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो, तो ऐसा एक मीडियम डेवलप होता है। बहुत जो मीडियम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मुराशिगे स्कूप करके एक मीडियम है, ये करीब 60 साल पहले 60 साल पहले करीब ये इसकी खोज हुई। पिछले 60 साल में ही ज़्यादातर टिश्यू कल्चर में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। तो मुराशिगे स्कूप ने मीडियम डेवलप किया, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें कि NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम, और माइक्रो एलिमेंट्स में कहें तो जिंक, आयरन को, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, ऐसे करके बहुत सारे 7-8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं। प्लस इसमें हम कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स डालते हैं जो कि कल्चर में प्लांट को ग्रो करने के लिए मदद करते हैं, क्योंकि इनिशियली पौधे के पास वो, चूँकि हमने पौधे से वो टुकड़ा टिश्यू का निकाल लिया है, अब वो पौधे के संपर्क में नहीं है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो पौधे से मिलती थी ग्रो करने के लिए वो अब नहीं मिल रही हैं।
तो कुछ चीज़ें उसको रेडीमेड फॉर्म में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ विटामिन्स, कुछ और शुगर्स, जैसे कि कल्चर में पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे लाइट इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, बहुत थोड़ी सी लाइट देते हैं उसको, तो उसको फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, मतलब उसको अपना भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो वहाँ नहीं चलेगी या बहुत कम चलेगी, तो उसको बना बनाया भोजन, तो शुगर्स कार्बन सोर्स के फॉर्म में, जैसे कि टेबल शुगर जो होती है, सुक्रोज जिसको चीनी कहते हैं या आप साखर बोलते हैं, वो यूज़ होती है मीडियम में। इसके अलावा पौधे को जो ग्रो करने के लिए, नई नई पत्ती बनाने के लिए या नए शूट बनाने के लिए जो पदार्थ चाहिए उसको हम लोग ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। वो भी पौधे में अपने आप बनते हैं, वो यहाँ नहीं मिलेंगे, इसलिए हम उसको मीडियम में ऐड करके देते हैं। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स का मिल करके मिश्रण बनता है, वो मीडियम है। तो एक हो गया टिश्यू का पार्ट और एक हो गया मीडियम। और फिर कल्चर कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको उसको एक जितनी ज़रूरत है उतना प्रकाश दें, जो टेम्परेचर उसको चाहिए, जैसे 25 के आसपास टेम्परेचर हम रखते हैं, 1-2 डिग्री का प्लस माइनस हो सकता है, और प्रकाश करीब करीब 3000 लक्स, हम अगर कहें लक्स के फॉर्म में, तो ये बाहर की रोशनी का बहुत कम, हम कहें कि 10% भी नहीं होगा, मेरे ख्याल से 5% होगा, वो उतना प्रकाश उसको चाहिए होता है, क्योंकि प्रकाश उसको फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। तो ये मीडियम हो गया। इसमें जब हम कल्चर को इनॉकुलेट कर देते हैं तो कल्चर ग्रो करने लगता है, क्योंकि उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, और लाइट में रखते हैं तो ग्रीन हो जाता है। शुरू में पहले चूँकि अंदर से पार्ट लिया है इसलिए वो ग्रीन नहीं होता, धीरे धीरे वो ग्रीन होता है, उसमें स्वेलिंग होती है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा ऐसा लगे तो मैं थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकता हूँ। फिर वो स्वेलिंग होती है, कोई भी चीज़ ग्रो होगी तो पहले वो मीडियम को एब्जॉर्ब करेगी तो स्वेल करती है, फिर उसमें जब सारे पदार्थ पहुँचते हैं तो नए नए अलग अलग प्रक्रियाएँ शुरू होती हैं। मल्टीप्लिकेशन उसमें से एक है जो हमें ज़रूरत है, जिसके लिए हम उसको कर रहे हैं इस प्रोसेस को। तो उसमें क्या होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स, जो उस कल्चर में पहले से ही रहती हैं, वो इंड्यूस हो जाती है कल्चर में, और नए नए बर्ड्स, नए नए शूट्स बनने लगते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया 2-3 महीने में शुरू हो जाती है। तो ये जब एक बार हमें मल्टीपल शूट्स मिल गए जितने की हमको ज़रूरत है, तो अगली स्टेज होती है मल्टीप्लिकेशन के बाद की, वो होती है रूटिंग या इलोंगेशन की स्टेज, जिसमें कि पौधा बड़ा, थोड़ा साइज बड़ा होता है, उसमें रूट्स आ जाती हैं। ये पौधे में पत्तियां, रूट सब कुछ है, पर अभी भी पौधा बहुत छोटा है और टेस्ट ट्यूब बेबी है, लैब में बना हुआ पौधा, जो कि सीधे सीधे उसको खेत में नहीं लगा सकते। तो इसको हमको हार्डनिंग करना पड़ता है, हार्डनिंग कहते हैं उसको, एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं, जिसमें कि पौधे को धीरे धीरे बाहर के, जैसे कि छोटा बच्चा, जब नया नया बच्चा अपने घर में आता है तो हम कैसे उसको संभालते हैं, बाहर भी ले जाना है तो उसको कपड़े में उड़ा के और ढक के ले जाएंगे, और बाहर के गर्म वातावरण से भी हम उसे बचाएंगे, ऐसे ही बिल्कुल छोटे बच्चे के लिए। तो उसको हार्डनिंग की प्रक्रिया 2 स्टेप्स में होती है, प्राइमरी हार्डनिंग और सेकेंडरी हार्डनिंग। ये ग्रीन हाउस में होती है प्राइमरी हार्डनिंग, जहाँ पे लैब जैसी ही कंडीशन, मैंने आपको बताया, कम लाइट और टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास, ऐसा टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं ग्रीन हाउस में भी। तो शुरू में करीब 8-10 दिन के बाद धीरे धीरे उसकी लाइट भी बढ़ा सकते हैं और टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं, और उसकी ह्यूमिडिटी कम करते हैं। पहले जैसे कल्चर बॉटल में पौधा ग्रो होता है तो वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो लगभग 100% होती है। फिर धीरे धीरे वो कम करते हैं, पौधा धीरे धीरे एक्लिमेटाइज होता है, करीब 4 से 6 हफ्ते में वो उसकी प्राइमरी हार्डनिंग पूरी हो जाती है, लेकिन साइज़ अभी भी छोटा होता है। तो वो पौधा खेत में लगाने के लिए छोटा है, तो उसको फिर से हमें उसको बड़ा करना है पौधे को, तो सेकेंडरी हार्डनिंग में ले जाते हैं, जो कि पॉली हाउस में, हमारे यहाँ जो एक पॉलीकम शेड हाउस एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उसमें हम लोग करते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ लाइट कंट्रोल करते हैं और कुछ भी कंट्रोल नहीं करते। अब पौधा बाहर के वातावरण में ग्रो हो रहा है, वहाँ भी करीब 4 से 6 हफ्ते में पौधे की सेकेंडरी हार्डनिंग पूरी हो जाती है। ऐसी पूरी ये प्रोसेस 1 साल में पूरी होती है। हमने जो बताया आपको, सिलेक्शन से लेकर के हार्डनिंग पूरी हुई, फिर वो पौधा खेत में देते हैं। अब इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बीमारियां हम चूँकि टेस्ट करते हैं, तो जब हम पौधा आप किसी भी ग्रोअर को के हाथ में दे रहे हैं तब पौधे में कोई बीमारी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर से बीमारियां आ नहीं सकती हैं। तो जब कोई ग्रोअर उसे खेत में लगाएगा तो उसे ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि बाहर से कोई बीमारी उसके खेत में ना आए। अगर ये पौधा स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो ये
बेस्ट प्रोडक्टिविटी देगा, क्योंकि हमने इसको सेलेक्टेड मदर प्लांट से बनाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है कि टिश्यू कल्चर के पौधे यूनिफॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर आप कंद के प्लांटिंग किए हुए फील्ड में जाएंगे तो आपको ये समझ में आया कि कोई कंद छोटा था, कोई थोड़ा बड़ा कंद था, मीडियम साइज़ का था, तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग होगी। ऐसे खेत के लिए पानी की व्यवस्था, अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जो जडे साहब अभी बताया होगा आपको ड्रिप इरिगेशन का, तो डेफिनेटली हमारे लिए चैलेंज आता है, क्योंकि कोई कंद छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन ड्रिप से तो एक ही तरह का पानी की सप्लाई हो सकती है, एक ही मात्रा की, तो वहाँ पर वो उसके लिए सूट नहीं करता है। तो कंद की प्लांटिंग में साइज यूनिफॉर्म नहीं होगा। दूसरा, कोई भी किसान कंद टेस्ट करके नहीं लगाएगा खेत में, ना ही कोई किसान जो सप्लाई करता है कंद वो टेस्ट करके देगा। तो दूसरा ये हो गया कि बीमारी आपके खेत में आ सकती है कंद से। दूसरा, मिट्टी भी आती है उसके साथ, कंद के साथ कुछ ना कुछ मिट्टी आती है। आपके खेत में पहले कभी केला नहीं लगा होगा, लेकिन केले की बीमारी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कंद लगाया आपने, तो कंद के साथ वो मिट्टी भी आई। जो सॉइल बोर्न डिजीजेस हैं वो भी आपके खेत में, क्योंकि बाहर की सॉइल आ रही है। ये तीनों खतरों से टिश्यू कल्चर का पौधा आपको बचाता है। ना तो वो कोई बीमारी कैरी करता है, ना तो उसकी मिट्टी में, ना उसके टिश्यू में, ना उसमें साइज अलग अलग होता है। तो अगर आप ड्रिप से उसको पानी और खाद देना चाहेंगे तो बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। अगर उसको बैलेंस्ड इरिगेशन और फर्टिगेशन मिला, जैसा जडे सर ने बताया ही होगा आपको, तो उसकी बाढ़ बहुत अच्छी होती है। और चूँकि यूनिफॉर्म है तो उसमें बाकी सारी प्रोसेसेस भी एक साथ होंगी, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग सब एक साथ होगी। तो किसी भी ग्रोवर को, किसी सप्लायर को जो जिसको फ्रूट्स खरीद रहे हैं, अट्रैक्ट करना बहुत आसान होगा, क्योंकि आपके पूरे खेत में लगभग एक बार में ही फ्रूट्स मैच्योर होंगे और आप एक साथ उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ग्रोवर्स के लिए भी आसानी और बायर्स के लिए भी आसानी। नहीं तो पहले जैसे आप अगर कंद के खेत में देखेंगे तो कुछ फ्रूट मैच्योर हो गए, तो उतने नंबर ऑफ फ्रूट्स ना होने की वजह से ग्रोवर्स भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो उनके लिए मार्केटिंग की प्रॉब्लम होती है। मार्केटिंग तो होती है पर उनको अच्छा रेट नहीं मिलता है, अच्छे मार्केट में अपना फ्रूट नहीं बेच सकते। टिश्यू कल्चर से वो फ़ायदा हुआ। टिश्यू कल्चर से एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाना, अपने जलगांव से ये बहुत सारे लोग बना के, और ये अभी कोई डिस्कशन का विषय नहीं है साहब, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इसके, आप देख सकते हैं, खुद आपने देखा भी होगा, लोग कर रहे हैं और प्रूव कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी काम करती है। टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी भी, और जो इरिगेशन और फर्टिगेशन के लिए जो अपना इरिगेशन टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ग्रोवर्स के लिए तो बहुत सूट कर रही है और बहुत उनको एडवांटेज है इससे। ये रही एक्चुअली सिलेक्शन और टिश्यू कल्चर में कैसे पौधे बनते हैं उसकी बात। अभी एक्चुअली में तो कोई भी प्रोसेस, जैसे बनाना का मैंने कहा कि ये मीडियम है, तो मीडियम का डेवलपमेंट कैसे होता है उसकी एक पूरी प्रोसेस होती है। ये करीब 3 से 5 साल का प्रोसेस होता है, इसको प्रोटोकॉल डेवलपमेंट कहते हैं हम। जब जडे साहब ने बताया कि 93-94 में यहाँ पर टिश्यू कल्चर शुरू हुआ चैन इरीगेशन में, राहन मेरिस्टेम के साथ ये काम शुरू हुआ था। तो शुरू की रिसर्च बनाना पे हुई, क्योंकि बनाना पे ही फोकस था। धीरे धीरे बनाना कॉमर्शियल प्रोपगेशन में आया। जैन इरीगेशन ने बहुत सालों तक सिर्फ बनाना पर ही फोकस रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि बनाना की टेक्नोलॉजी दुनिया में जो बेस्ट है उस लेवल तक हम उसको ले जाएं, ताकि ग्रोअर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। इसलिए दूसरी क्रॉप्स में डाइवर्सिफिकेशन कुछ सालों तक नहीं हुआ। बाद में नई नई क्रॉप्स ऐड हुई, जैसे अभी बात हो रही थी पोमोग्रेनेट की, इसका भी टिश्यू कल्चर में रिसर्च में डेवलपमेंट हुआ है। तो इस तरह से मेरे डिपार्टमेंट का रोल इसमें आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई नई क्रॉप्स कैसे डेवलप होती हैं। अभी मैं अगर अगली स्लाइड से हम शुरू करेंगे। ये एक स्लाइड है जो जैन इरीगेशन क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिखाइए फिर से दिखाइए। आप थोड़ा सा बता देंगे तो अच्छा होगा। ये जरा गौर से देखिए इसको, और आपको पता चलेगा जैन इरीगेशन इज द ओनली कंपनी, not in our country, in entire world I will say, where the agriculture value chain gets completed, जहाँ पे कृषि की मूल्य साखड़ी
जो चेन जो है वो कंप्लीट होती है। जैसे आप जानते हो सीड कंपनी सीड प्रोड्यूस करती है, उनका मार्केट करते हैं डीलर के माध्यम से, और डीलर के माध्यम से फार्मर के पास पहुंचती है, लेकिन वो आइसोलेशन में काम करती है। फर्टिलाइजर कंपनी भी आइसोलेशन में काम करती है, पेस्टिसाइड कंपनियां भी आइसोलेशन में काम करती है, लेकिन हम लोग आइसोलेशन में नहीं काम करते। हम लोग किसानों को जो लगने वाले इनपुट्स हैं, जैसे प्लांटिंग मटेरियल है, इसके पहले हमारे पास जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी फैसिलिटी भी हमारे पास में है कि किसानों को सॉइल टेस्ट करना है तो हम लोग कराते थे, उनको एडवाइस भी करते हैं, प्लांटिंग मटेरियल देते हैं, चाहे वो केला का हो, चाहे अनार का हो, चाहे स्ट्रॉबेरी का हो, चाहे सब्जी का हो, चाहे आपका फ्रूट क्रॉप्स का हो, चाहे आपका एग्रो फॉरेस्ट्री हो, सभी पौधे हमारे पास में। अभी नर्सरी नाम चेंज हो गया शेडगे साहब, अभी हमारा नर्सरी का नाम नर्सरी नहीं बोलते हम लोग, जैन हाईटेक प्लांट फैक्ट्री, जैन हाईटेक प्लांट फैक्ट्री। फैक्ट्री इसलिए भाई केले के 10 करोड़ पौधे, अनार के एक करोड़ पौधे करीबन, और स्ट्रॉबेरी के 50 लाख पौधे, और बाकी अनदर जो प्लांटिंग मटेरियल है करीबन 15 करोड़ पौधे हम लोग बनाते हैं। 15 करोड़ वेजिटेबल, फ्रूट, ऑर्नामेंटल, एग्रो फॉरेस्ट्री सब मिला के 15 करोड़ पौधे हमारे जैन हाईटेक प्लांट फैक्ट्री से हर साल निकलते हैं, इसलिए हम फैक्ट्री कहते हैं उसको, नर्सरी। ठीक है, तो हम लोग प्लांटिंग मटेरियल देते हैं, इरिगेशन के लिए माइक्रो इरिगेशन का सिस्टम देते हैं, चाहे स्प्रिंकलर लगाना चाहते हैं या ड्रिप लगाना चाहते हैं। इसके बाद में वो फसल जो भी फसल लगाना चाहता है, प्लांटिंग मटेरियल लेना चाहेगा तो किस तरह से लगाया जाएगा, कौन सा स्पेसिंग लेना चाहेगा, कितना पानी देना है, कितना खाद देना है, उसको टेक्निकल नो हाउ हम प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करते हैं, उसके गाँव में देते हैं, उसके खेत में जाके ट्रेनिंग देते हैं। ये जो ट्रेनिंग यहाँ पे लेना चाहता है तो यहाँ पर भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, स्पाइसेस है, जो भी पैदा करेगा वो हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं उसका। चाहे किसान से हम हल्दी लेते हैं, अदरक लेते हैं, मिर्ची लेते हैं, लहसुन लेते हैं, प्याज लेते हैं, आम लेते हैं, आपका अमरूद लेते हैं, और सीताफल लेते हैं, जामुन लेते हैं, स्ट्रॉबेरी लेते हैं, सब किसान से लेते हैं। उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं हम लोग उसको, और प्रोसेसिंग करके जो पल्प आएगा, जूस आएगा, प्यूरी आएगी, कॉन्सेंट्रेट रहेगा, उसको हम लोग मार्केट करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट। इस तरह से वैल्यू चेन कंप्लीट हो जाती है। बाकी कंपनियां ऐसा थोड़ी करती है, ना ही वो ट्रेनिंग देती है, ना ही वो प्रोक्योरमेंट करती है, ना ही प्रोसेस करती है, ना ही एक्सपोर्ट करती है। वो तो अपना सीड बेच के भूल जाएंगे, फर्टिलाइजर बेच के भूल जाएंगे, पेस्टिसाइड बेच के भूल जाएंगे। बट जैन इरिगेशन इज वेरी लायक टू द फार्मर, एंड जैन इरिगेशन नेम इज इनफ फॉर द क्वालिटी प्रोडक्शन सर्विसेज। पहले से ही हम लोग, हमारी जो एटीट्यूड है, हमारा जो नेचर है, हम किसानों के साथ में वेरी क्लोजली वी आर वर्किंग विद द फार्मर्स, एंड वर्किंग विद फार्मर्स इज आवर पैशन। जो भी काम पैशनेटली होता है ना, वो बहुत ही सक्सेसफुल होता है। इसलिए जैन इरिगेशन इज द ओनली कंपनी वेयर द एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन इज गेट कंप्लीटेड। Now your two projects are in now. Smart project is there. In another project, the magnet is there. So this is the for the complete value chain only. Smart project for the cotton and magnet project for the fruit stock and vegetable crops. It is for only for completing the value chain only. Okay, and this program is implementing through the FPOs. Maharashtra government is implementing this project through the FPOs. So this is the idea of that. नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट आपने इन्फॉर्मेशन दी, मैं शायद इतना बता नहीं पाता, लेकिन अच्छा हुआ। ये स्लाइड अभी जड़े सर ने एक्सप्लेन किया आपको कि ये एक ही जगह पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ग्रोअर के लिए भी आसानी है। अगली स्लाइड, ये टिश्यू कल्चर की एक डेफिनेशन है, जो कि अगर हम कहें संक्षेप में तो पौधों में एक खास गुण पाया जाता है कि उसकी एक सेल, एक कोशिका, जो कि हमारी संरचना की और कार्यात्मक इकाई है, कोशिका सेल, उसको अगर अलग कर पाए तो हर एक कोशिका से एक पौधा बन सकता है। ये पौधों में ये गुण है, इसको टोटिपोटेंसी कहते हैं। पर कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि उनको अलग अलग करना संभव नहीं है, इसलिए वो ग्रुप ऑफ सेल्स कहते हैं, इसलिए उसको कहते हैं टिश्यू। एक कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम फिर टिश्यू कल्चर पड़ा। आज
टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर गई है, अब हम सेल लेवल पे काम कर सकते हैं। हालांकि सेल्स को अलग अभी भी नहीं कर पाते, लेकिन सेलुलर लेवल पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। मैं कुछ संक्षेप में बताऊंगा अभी आपको। तो ये एक तरीके से कल्चर में टिश्यू से पौधा बनाने की प्रक्रिया है, संक्षेप में अगर कहें तो। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ हिस्ट्री में कुछ मैंने बताया आपको कि पिछले 60 सालों में बहुत डेवलपमेंट हुए। तो ये टोटिपोटेंसी जो मैं आपको बोल रहा था, 1902 में एक साइंटिस्ट है एबरलैंड, उन्होंने ये टर्म निकाला था कि पौधों में ऐसा एक गुण पाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया मुराशिगे स्कूप 1962 में इन्होंने मीडियम डेवलप किया, MS मीडियम। ये आज भी बहुत अच्छी तरह से यूज़ हो रहा है। मैं कहूँगा कि 80% अगर कहे तो यही मीडियम यूज़ होता है। जितने भी पौधे टिश्यू कल्चर में बनते हैं या बनाए जा रहे हैं उसमें यही मीडियम यूज़ होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक्चुअली मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टिश्यू कल्चर में 3 चीज़ें मुख्य हैं। एक्सप्लांट मैंने बताया आपको, पौधे से लिया हुआ पार्ट। बनाना के केस में हम लोगों ने शूट टिप लिया था। ऐसे आप पौधे का कोई भी भाग ले सकते हैं, रूट से लेकर के स्टेम, पत्ती के पार्ट को, रूट के पार्ट को, सीड के एम्ब्रियो को, सीड के भी अलग अलग भागों को अलग करके कल्चर कर सकते हैं। वो सब टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। हर एक टेक्नोलॉजी का अलग अलग उपयोग है, उसके हिसाब से वो टेक्नोलॉजी है, पर कोई भी भाग पौधे का आप लेकर के पौधा बना सकते हैं। दूसरा मैंने बताया मीडियम, जो मुराशिगे स्कूप मीडियम, इसमें क्या है मैंने बता दिया आपको, सारे न्यूट्रिएंट्स मिला दिए और उसका मिक्सचर बनाया और उसमें हम कल्चर ग्रो करते हैं। कल्चर ग्रो करने के लिए एक बहुत बात जो मेरी रह गई बतानी आपको, कि कल्चर मीडियम को स्टरलाइज करना पड़ता है, क्योंकि बाहर से जब हम चीज़ें मिलाते हैं तो उसमें माइक्रोब्स, जीवाणु रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, तो उसको ऑटोक्लेव करना पड़ता है। स्टीम स्टरलाइजेशन कहते हैं इसको, जिससे कि वो निर्जंतुक बन जाता है। फिर उसमें हम टिश्यू रखते हैं। टिश्यू को रखने से पहले भी सरफेस स्टरलाइजेशन किया जाता है, उसकी सतह को साफ किया जाता है, वहाँ पे कोई जंतु ना हो, बैक्टीरिया वगैरह ना हो। तो ऐसे दोनों प्रोसेस करके तब कल्चर होता है। तीसरा मैंने बताया कल्चर कंडीशन, मैंने बताया आपको लाइट और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये तीनों चीज़ें मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के अलग अलग प्रकार हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पहला मैंने बताया मेरिस्टेम कल्चर है ये। इसमें पौधे, कोई भी पौधा अगर आप देखेंगे तो उसका जो ग्रोइंग पॉइंट है, जहाँ से नई नई पत्तियाँ आ रही हैं, उसको बिल्कुल एपेक्स पे जो पॉइंट है उसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। उसमें कुछ सेल्स का समूह होता है जो एम्ब्रियोनिक सेल्स समझ लीजिए आप, जिसमें कि मल्टीप्लाई करके और तरह तरह की सेल्स बनाने की क्षमता होती है। वो पत्ती भी बना सकता है, फूल भी बना सकता है, जड़ भी बना सकता है, ऐसा एपिकल मेरिस्टेम। अगर वो पौधे के शूट के ऊपर है तो वो शूट बनाएगा, अगर रूट के पार्ट में है तो रूट की सिंथेसिस करता रहता है, नई नई रूट्स बनती रहती हैं। तो ये एपिकल मेरिस्टेम हम निकाल सकते हैं और उसको कल्चर कर सकते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम को अगर कल्चर किया तो वो मेरिस्टेम कल्चर कहेंगे। ये खास तौर पे प्रयोग होता है जब कोई पौधा आपके पास ऐसा है जो बहुत ही उपयोगी है, बहुत कहेंगे उसको कि उसकी इनवैल्यूएबल जिसको कहते हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं, ऐसी कोई चीज़ होती है, पर उसमें बीमारी है और उसका कोई बीमारी रहित पौधा आपके पास नहीं है, वो एक ही पौधा है। तो मेरिस्टेम कल्चर से आप उसको बीमारी रहित बना सकते हैं। ये थोड़ा कठिन काम होता है, कॉमर्शियली इस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया जाता, पर ऐसे प्रयोग में उसका काम होता है, जहाँ पे डिजीज़ से पौधे को अलग करना है, डिजीज़ रहित पौधा अगर बनाना है, जो बहुत मुश्किल होता है। दूसरा है शूट टिप कल्चर, जैसे कि बनाना मैंने बताया आपको, जो केले का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसमें शूट टिप कल्चर यूज़ होता है। ज़्यादातर कॉमर्शियल प्रोपगेशन में शूट टिप कल्चर ही यूज़ होता है। फिर आपको होता है नोड कल्चर। तो जैसे कोई भी पौधा जो आपने देखा होगा जिसमें कि स्टेम्स हैं, जैसे बनाना में ऐसा स्टेम तो अंडरग्राउंड होता है, ऊपर जो दिखता है वो स्यूडो स्टेम होता है और पत्तियाँ होती हैं। पर ऐसे पौधे जैसे आप दाड़िम समझ लीजिए, उसमें पत्तियाँ स्टेम के ऊपर जगह जगह लगी है, जहाँ से पत्तियाँ लगी होती हैं उसको नोड कहते हैं। मैं आपको नोड्स की पत्तियाँ होती हैं और ये इसकी शूट टिप है, ऐसे नोड्स होंगी, नोड से पत्तियाँ होंगी। इस नोड को ये नोड कहते हैं,
ये जो आपने इंटरनोड कहा वो दो नोड्स के बीच का, उसको इंटरनोड कहते हैं। नोड्स को भी यूज किया जाता है। उस नोड पे पत्ती जहाँ से जुड़ी हुई है वहाँ पे उस जगह पर एक बड होती है, उसको एक्सिलरी बड कहते हैं। जैसे एपिकल बड मैंने बताया आपको, एपिकल मेरिस्टेम, वैसे एक्सिलरी बड होती है हर नोड पे। तो नोड कल्चर कर सकते हैं, उससे भी प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। फिर मैंने बताया आइसोलेटेड रूट कल्चर है, जिसमें कि मैंने अभी बताया उसमें भी एपिकल मेरिस्टेम होता है। अगर आप रूट कल्चर करेंगे तो रूट को फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करके शूट भी बन सकते हैं रूट से। ऐसे भी प्रयोग हुए हैं, पर ये अलग अलग मैंने कहा कॉमर्शियल प्रोपगेशन के मेथड्स नहीं है। एम्ब्रियो कल्चर, जिसमें कि बहुत सारे ब्रीडर्स इसको यूज़ करते हैं, जिसमें कि कई बार क्या होता है कि दो पेरेंट्स को, बहुत डिस्टेंट पेरेंट्स होते हैं बहुत दूर के, जो नॉर्मली क्रॉस नहीं करेंगे नेचर में, उनको क्रॉसिंग करते हैं तो उसके एम्ब्रियो अबॉर्ट हो जाते हैं, सीड नहीं बनते। उनको फिर लेबोरेटरी में कल्चर किया जाता है। उन एम्ब्रियोज को अबॉर्ट होने से पहले की स्टेज में आइसोलेट करते हैं और उनको कल्चर करके पौधा डेवलप करते हैं। इस तरह से नॉर्मली जो पौधा बाहर डेवलप नहीं हो सकता, एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा वो टिश्यू कल्चर से बनाया जा सकता है। इसलिए नई नई प्रजातियां आज आसानी से विकसित हो रही हैं। जो पेरेंट्स नॉर्मली क्रॉस नहीं होते, उनको भी क्रॉस करने की विधि इस टेक्नोलॉजी से डेवलप हुई है। अगली स्लाइड। सिंह साहब, पपीता हर्माफ्रोडाइट है, हम टिश्यू कल्चर से मल्टीप्लाई करते थे, तो जो आने वाली प्रोजेनी है वो हर्माफ्रोडाइट नहीं आएगी? देखिए, पपीते में दो पॉइंट्स हैं। आपने कहा सही है, हर्माफ्रोडाइट भी है और फीमेल भी है। हाँ। लेकिन इसमें टेम्परेचर का रोल पपाया में आ जाता है। तो हो सकता है आप हर्माफ्रोडाइट कल्चर करेंगे, एक्सपेक्टेड है हर्माफ्रोडाइट आएगा, लेकिन बाहर टेम्परेचर चेंजेस की वजह से उसमें सेक्स चेंज होता है पपाया में। ये बहुत कॉमनली देखा गया है। हम लोगों ने भी कुछ प्रयोग किए थे। जो आप कह रहे हैं ना, हर्माफ्रोडाइट हमने किया, फील्ड में लगाया तो हमें मिक्स पॉपुलेशन मिली। तो स्टडी चल रही है, इस पर रिसर्च चल रही है। एक्चुअली वो टेम्परेचर का इफेक्ट कहा जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट भी कैसे काम करता है वो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि किसी और तरीके से उसको समझ सकते हैं। और आपने सही कहा, अगर हम हर्माफ्रोडाइट को सेलेक्ट करेंगे तो वही बनना चाहिए। मुझे डाउट है उसमें, इसीलिए तो मैंने पूछा। वही बनना चाहिए। नहीं बनते ना उस टाइम। हाँ, नहीं तो उसका कारण ये, हाँ। लोगों ने जो स्टडी किया वो ये कारण मिला। उस पर भी और काम चल रहा है, लोग अभी कर रहे हैं काम, हम लोग भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं इसको समझने के लिए कि कैसे इस परिवर्तन को रोक सकते हैं क्या हम। ये तो ये अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल मैंने बता दिया आपको। जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि एक ही मदर प्लांट से हम लेते हैं तो जेनेटिक यूनिफॉर्म है, और डेवलपमेंटल यूनिफॉर्मिटी भी है उसमें। फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि सेलेक्टेड मदर प्लांट है, तो सारे पौधे सेलेक्टेड मदर प्लांट्स के हैं, इसलिए एवरेज यील्ड खेत की बढ़ जाती है। फिर मास मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप। जैसे केले के अगर शक्कर से पौधे आप बनाना चाहें बहुत सारे, तो बहुत साल लग जाएंगे अगर आपको 1 लाख पौधे बनाने हों, क्योंकि एक केले के सामने 10 शक्कर आएंगे, 8-10 खोड़ आते होंगे अगर उनसे करेंगे। पर टिश्यू कल्चर में आप एक खोड़ से सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हाई मल्टीप्लिकेशन ऐड करती है उसमें। फिर राउंड द ईयर प्रोडक्शन हो सकता है इसमें, कोई, क्योंकि लैब के अंदर है इसलिए सीजन का कोई फर्क इसमें नहीं आता है। इसमें सुपीरियर जीनोटाइप्स, मैंने बताया आपको कि कुछ जीनोटाइप्स जो कि नॉर्मली अपने वातावरण में जो बाहर सीड सेट नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट्स बहुत अलग अलग हैं, वो कल्चर में करके नए जीनोटाइप्स क्रिएट किए जा सकते हैं। उसका एडवांटेज टिश्यू कल्चर का है। ये एक्चुअली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें बताया आपको कि किसी भी नए पौधे का जो मीडियम डेवलप करना है, एक्चुअली मीडियम सिर्फ नहीं होता है उसमें कल्चर कंडीशंस भी हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसकी ग्रोथ कंडीशंस भी करते हैं, बाकी चीज़ें भी ऑब्जर्व करते हैं। उस पूरे को प्रोटोकॉल कहा गया। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वो किसी भी नई क्रॉप का, जैसे भी हम लोग ने कॉफ़ी का एक सिस्टम